السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم ہمارے اس خصوصی پروگرام میں شہر آفاق جامعہ نظامیہ اسلامی و عربی دانشگاہ کی ملحقہ سب سے قدیم و عظیم متحدہ ضلع محبوب نگر کا کہنہ مشق ادارہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ کے متعلق کچھ تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ دارالعلوم کورم پیٹ جو تقریباً 98 برس قبل پیر طریقت حضرت مولانا الحاج محمد عبدالحق قادری رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسے کی سرپرستی میں قائم کیا گیا، جہاں سے اب تک ہزاروں حفاظ و علماء کو تیار کیا گیا۔ 98 برس میں تاحال جید اساتذہ و فارغین جامعہ نظامیہ نے مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایسے بااثر طلباء کو تیار کیے ہیں جو ملک و بیرونی ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تمہارا نام اونچا ہے، بہت اونچا ہے عبدالحق، تمہارا نام اونچا ہے، بہت اونچا ہے عبدالحق، ہمارے شہر کا یاقوت ساحرہ ہے عبدالحق، ہمارے شہر کا یاقوت ساحرہ ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق۔ علماء نے نبی کی عاقبت تم نے سنواری ہے، علماء نے نبی کی عاقبت تم نے سنواری ہے، علماء نے نبی کی عاقبت تم نے سنواری ہے، یہاں کا بچہ بچہ علم کا شیدا ہے عبدالحق، یہاں کا بچہ بچہ علم کا شیدا ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق۔ تمہاری درسگاہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہے، تمہاری درسگاہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہے، تمہاری درسگاہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہے، وہیں مرقد تمہارا نور کا دریا ہے عبدالحق، وہیں مرقد تمہارا نور کا دریا ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق، بہت اونچا ہے عبدالحق۔ یوں تو دینی مدارس کی ہمیشہ یہ شان استغنا رہی، وہ کسی حکومت یا کسی سرمایہ دار کے اعتماد پر نہیں چلے، نہیں قائم ہوئے، یہ قائم ہوا، حکومتیں تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہوتی رہیں، دیتے رہے، ایسے یہ مدرسہ قائم ہونے کے بعد بھی کوشش تو ہوئی مگر وہ کارروائی ادھوری رہی، بادشاہ سے کوئی شاہی فرمان جاری نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں ملت اسلامیہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مسلمان جیسے ہر دور میں کوشش کیے ہیں، ایسے یہاں بھی ہوئی۔ یہ سے شان ہے مسلمانوں کی جو اپنے دینی تعلیم کے لیے کسی خاص شخص کو، حکومت کو اپنے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی بنیاد نہیں بنا۔ لوکل فنڈ میں کام کرنے والے ایک لیاقت صاحب تھے 1926-27 میں، جب یہاں سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے تھے، ان کی اہلیہ اس تعلیم سے واقف تھی،
शौक़ भी था। तो बानिया मदरसा लड़कियों की तालीम के लिए उनके ताउन से एक शोबे निस्वान क़ायम किए और टेलरिंग लड़कियों को सिखाने का इंतज़ाम भी किए, जिसका तालीमी सिलसिला अभी तक बाकी है, चल रहा है। लड़कियों के बाज़ाब्ता तजवीद की तालीम, डिप्लोमा इन अरबिक और अहले खिदमत शरइया और मौलवी आलिम फाजिल जामे निज़ामिया तक भी यहाँ के असातिज़ा ख़वातीन को तैयार किए हैं, जिसमें बादेपल्ली के कुछ हज़रात इसमें अच्छा ताउन किए हैं। वो तालीमी सिलसिला बाकी है, 1926-27 से ही वो चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दारुल उलूम अरबिया जब से इसका क़याम अमल में आया, इब्तदा ही से जामे निज़ामिया के निसाब की तकमील यहाँ पर कराई जाती है और दर्स निज़ामी की तालीम यहाँ पर दी जाती है। वैसे इल्हाक़ का जो मामला है, इसके संगे बुनियाद जो 1324 हिजरी में 44 हिजरी में रखा गया, उसके कुछ ही अरसे के बाद ही जामे निज़ामिया से इसका रब्ता हुआ और वहाँ का निज़ाम तालीम, यहाँ का भी निज़ाम तालीम वही रखा गया और आज तक उसी निसाब के मुताबिक चल रहा है। हम बड़े बहुत खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत इसलिए हैं कि हम इस मुक़द्दस ज़मीन पर पैदा हुए हैं। जो हम पैदा होने से पहले आलीशान मदरसा यहाँ पर जो है ना मौजूद था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इसको तामीर किया और बहुत अच्छे उम्दा अंदाज में इसको लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मदरसा तो हम जब से देख रहे हैं, जब से लेकर आज तक कभी जो है ना अपनी खिदमत से रुका नहीं है। बखूबी बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है ना कई मसाइल दरपेश हुए, कई हालात आए, फ़िरक़ा परस्तियाँ भी हुए, बहुत सारे लोगों को जो है ना नज़र बद भी इस मदरसे पर पड़ी, लेकिन कभी किसी का कोई फ़र्क नहीं हुआ, मदरसे का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कुछ तुलबा में कमी ज़्यादती होती रही, लेकिन अपना काम तो बराबर अंजाम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ़िलहाल फिर 2-4 साल से अच्छे उरूज पर मदरसा जो है ना गामज़न हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज के माहौल के हिसाब से, आज के तर्ज और नए अंदाज के हिसाब से भी इस मदरसे को जो है ना ले जाने के लिए बस्ती वाले, मदरसे के इंतज़ामिया, ख़ुसूस कर मौलाना हज़रत सैयद रऊफ़ अली साहब के ज़ेर निगरानी में उनके मुफीद मशवरों से जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अभी कुछ नौजवान हजरात भी और इस मदरसे के जो बानी हैं उनके अफराद ख़ानदान भी बहुत खुशी से जो है ना सामने बढ़ कर के इखलास के साथ काम करने का एक अज़्म भी लिए हुए हैं। इंशाअल्लाह उसके नताइज भी आ रहे हैं। उम्मीद के आगे जो चलकर जो है ना मदरसा बहुत अच्छे अंदाज में और तरक्की करके दिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ भी जाते हैं बहुत बड़ी खुशी होती है। बम्बई में जाओ हमारे मदरसे का आदमी मिलता है, हमको इज़्ज़त मिलती है। यहाँ तक कि बैरून ममालिक में भी अगर चले जाएँ कभी हज के लिए, उम्रा के लिए, तो वहाँ पर भी जो है ना इस मदरसे के फारिग तलबा मिलते हैं जो आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। हमें इतनी इज़्ज़त मिलती है कि जबकि हम कुछ नहीं है। बस खुशकिस्मती इसी बात की है कि ज़मीन से हम। मैं मोहम्मद अजमत अली, रिपोर्टर सिटी इंडिया न्यूज़ जड़चल्ला। दारुल उलूम अरबिया कोरमपेट और इस ज़मीन पर जितने भी मदारिस हैं ये दीन के किले हैं। यहीं से इस्लाम की हकीकी तर्जुमानी होती है। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की इशाअत इन्हीं मदरसों से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब मुझे मोहम्मद अफजल को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और ख़ास प्रोग्राम के तहत। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।